नमस्कार दोस्तों, सिविल गॉव प्रो में आपका स्वागत है। आज आपको खुशखबरी देना है कि वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल सर्विस कमीशन ने फिर से सब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक एडवर्टाइज निकला है और ये आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है कि ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन करना है थ्रू वेस्ट बंगाल जो म्युनिसिपल सर्विस कमीशन का वेबसाइट है www.mscwestbengal.org। तो सब असिस्टेंट सिविल जो म्युनिसिपल सर्विस कमीशन से एग्जाम होगा और रिक्रूटमेंट होगा कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 सितंबर 2025 से ये आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है और इसमें देखिए वैकेंसी है 78 वैकेंसी है और जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है उसमें है अनरिजर्व 31, ईडब्ल्यूएस 8, यूआर पीडब्ल्यूडी 03, एससी 18, एसटी 5, ओबीसी कैटेगरी ए 8 और ओबीसी कैटेगरी बी 5। पे लेवल जो है इसका तो पे लेवल 12 पे लेवल है जो रुपा 2019 में है और प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टेट काउंसिल ऑफ फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल education or its equivalent candidates having higher qualification in civil engineering may also apply। इसका मतलब जो डिप्लोमा है वो तो अप्लाई करना है और वो अप्लाई कर सकेगा, लेकिन हायर क्वालिफिकेशन जो है वो भी अप्लाई कर सकता है। और एज जो है नॉट मोर देन 37 इयर्स और उसका जो काउंट होगा 1 जनवरी ऑफ द ईयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मतलब जो ईयर एडवर्टाइजमेंट निकला है कि इस साल 2025, तो इस साल 2025 1 जनवरी से ये 37 इयर्स का ये काउंट होगा। तो ये आपको इन जनरल होगा और सब्जेक्ट टू एज रिलैक्सेशन एज मेंशन्ड बिलो। नीचे दिया हुआ है कि जो एज रिलैक्सेशन होगा वो नीचे दिया हुआ है। एज का जो काउंटिंग होगा मतलब एज जो आपका रिकॉर्डेड है माध्यमिक और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड। इसमें नोट में दिया हुआ है कि both men and women are eligible to apply for the post। Uploading documents and certificates, documents regarding prescribed qualification, age, caste, PWD, EWS, ex-servicemen, etc. certificate must be scanned and uploaded along with online application। Bona fide certificate issued by the competent authorities must be obtained within the closing date of advertisement। आपको क्लोजिंग डेट का जो दिया है उसके अंदर ही उसके अंदर ही ये एडवर्टाइज की डेट के अंदर ही करना है। सबमिशन ऑफ बॉन्ड, कैंडिडेट्स कॉल्ड for document verification will have to submit a bond on ₹50 non-judicial stamp paper to the effect that in case of the appointment
they will arrange for temporary lodging shelter within Kolkata Municipal Corporation area for doing emergency duties as and when may be required by the corporation, Kolkata Municipal Corporation authorities. ठीक है। और ये देखिए कि एज रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट shall be relaxable for scheduled caste, scheduled tribes candidate of West Bengal by 5 years, relaxable for other backward caste candidates of West Bengal 3 years. In case of persons with disabilities 40% and above as per government rules, the upper age limit shall be relaxable up to 45 years. Scheduled caste, scheduled tribes, other backward class candidates of other state shall treated as general candidate. ये ध्यान में दीजिए कि अदर स्टेट का जो कैंडिडेट आप इसमें एप्लीकेशन करेगा उसको जनरल कैंडिडेट्स में ट्रीट किया जाएगा। मतलब आप लोग जो अदर स्टेट का होगा वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का होगा। एंड एक सर्विसमैन ऑल्सो अप्लाई कर सकता है वो, लेकिन उसका ये एक दिया हुआ है कि ये आप देख लीजिए कि एक सर्विस में शैल बी अलाउड टू डिडक्ट पीरियड of actual military service from his or her actual age if the resultant age does not exceed the maximum age limit prescribed for the post of sub assistant engineer civil by more than 3 years. He or she shall be deemed satisfy the condition regarding age limit. Eligibility of candidate for applying as other backward class category A and B shall be guided by the notification issued by backward class welfare department in this regard and any other subsequent notifications if issued by backward classes welfare department government of West Bengal till the last date of submission of online application for the advertisement. The operation of the said notification will be subject to outcome of pending legal proceedings in the competent court of law, and the commission shall abide by such order if any arising out of such legal proceedings. OBC classification of OBC A and OBC B and the percentage of reservation for OBC shall be subject to the result of the pending litigations before the Honorable Supreme Court of India. For EWS candidate जो इकोनॉमी weaker section candidates है, the benefit of reservation under economically weaker section category can be availed upon production of income and asset certificate issued by the any following authorities. ये आपको देखना है किस अथॉरिटीज को आपको ये सर्टिफिकेट लेना है। In the district, the district magistrate, additional district magistrate, subdivisional officer of the subdivision concerned, the district welfare officer, Kolkata, DWO for Kolkata Municipal Corporation areas. The reservation
the reservation for the EWS candidate will be guided by the notification number 325 PAR AR slash 3P 1 by 2019 dated 09/07/2019। ठीक है, ये नोटिफिकेशन नंबर है और ये नोटिफिकेशन नंबर में जो है उसी को ये मानकर चलना है। एससी कैंडिडेट्स, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए the candidates seeking the benefits of reservation as SC, ST, OBC must produce certificate issued by the, किससे आपको सर्टिफिकेट लेना है ये देख लीजिए, इन द डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ द सब डिविजन कंसर्न्ड इन कोलकाता, the district welfare officer Kolkata and ex officio joint director backward classes welfare. The said certificate must conform to the West Bengal SCs and STs Identification Act 1994। ये आपको देखना है कि ये जो होगा तो आपको एप्लीकेशन एससी, एसटी और ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर उसमें आप अप्लाई कर सकेगा। फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसएबिलिटीज पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ये जो है ये आपको देखना है कि इसमें दिया हुआ कि बेनिफिट रिजर्वेशन विल बी गिवन टू द candidates with disabilities at least 40% and above। और ये है सेकेंड, बेनिफिट्स एज रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटीज एट लीस्ट 40% एंड above with will be admissible to all such candidates as per relevant rules and regulations। ये है any person with disabilities as stated under respective reserved subcategories will be directed to furnish his or her self-attested photocopy of disability certificate in prescribed form in support of his or her claim issued by the competent authority as per provision of the government West Bengal। Persons with disabilities, तो ये आपको जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ये रूल्स रेगुलेशन दिया हुआ है कि किसको कितना किया मिलेगा। कैंडिडेट्स हैविंग डिसेबिलिटी लेस देन 40% shall be treated as unreserved candidates। जिसका डिसेबिलिटी लेस देन 40% है वो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स ट्रीट किया जाएगा। Therefore shall not get benefit for the reservation age relaxation under this category। Application fees और processing charges non refundable, ये रिटर्न नहीं होगा। पेबल टू WBMSC बाय ऑनलाइन मोड ओनली, जो है वो ऑनलाइन मोड में ही होगा। एप्लीकेशन फी फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स EWS एंड OBC कैंडिडेट्स आर ₹150 plus processing fees, processing charge 50, total 200 rupees। For SC
ST, PWD candidates only processing charge. इसका मतलब 50 rupees 50 only. No exemption fee is available to SC, ST, OBC candidates for other states. अदर स्टेट्स के लिए जो एप्लीकेशन है उसका नो एग्जाम्शन ऑफ फी, उसका फुल ये फास्ट जो दिया है अनरिजर्व्ड का, तो ये 200 रुपीज लगेगा. The application fees plus processing charge as mentioned in paras 1 and 2 above shall be collected by online payment method only through. ये देखिए, ये ठीक से देख लीजिए कहाँ पेमेंट करना है. इंडिया ideas.com limited bracket bill desk as mentioned at WBMSC website www.mscwb.org. Fee once paid shall not be refunded. ये जो है not be refunded under any circumstances, for the fee can be reserved for any other examination or selection. फी चेंज रिटर्न नहीं होगा. मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, ये देखिए कैसे. मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. दो टाइप का ये स्टेजेस में एग्जाम लिया जाएगा. वन टाइप होगा रिटेन टेस्ट और उसका मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, और सेकंड जो है पर्सनालिटी टेस्ट. रिटेन टेस्ट में 200 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होगा और पर्सनालिटी टेस्ट में 40 मार्क्स का होगा. ये OMR बेस्ड रिटेन एग्जामिनेशन होगा 200 मार्क्स का. 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा और प्रत्येक का ईच का 2 मार्क्स है. और इंपॉर्टेंट देखिए, आपको जो बताना है वो है कि इन एवरी इनकरेक्ट और रॉन्ग आंसर द आपको नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. और इसके लिए जो 100 मल्टीपल जो क्वेश्चंस होगा उसके लिए आपको 1.5 आवर्स मिलेगा. मतलब 60 प्लस 30 इक्वल्स टू 90 मिनट्स आपको मिलेगा. 90 मिनट्स का अंदर आपको 100 क्वेश्चंस करना है. मतलब आपको जो आंसर देना है स्पीड आपको लगेगा, तो आपको स्पीड बढ़ाना होगा और प्रिपरेशन अच्छा करना होगा. पर्सनालिटी टेस्ट में देखिए वो कमीशन का जो ऑफिस है उसमें ये पर्सनालिटी टेस्ट होगा और कैंडिडेट्स 3 टाइम्स जो कैंडिडेट्स है 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को पर्सनालिटी टेस्ट में बुलाया जाएगा. और क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए 45% मार्क्स ऑफ जनरल कैंडिडेट्स, मतलब अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स, 40% फॉर OBC कैंडिडेट्स and EWS candidates, 35% for SC
ST, and PWD candidates. The Commission shall have discretion to relax qualifying marks of any or all categories of candidate applied for the examination. After the said verification, eligible candidates will be allowed to appear for interview personality test. The candidature of the candidates absenting themselves on the date of interview or personality test will be cancelled without making any reference to them. उस टाइम आप प्रेजेंट नहीं होगा तो आपको कैंसिल किया जाएगा. फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स. ये देख लीजिए, जो फाइनल जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स होगा वो रिटेन एग्जामिनेशन एंड प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट. मतलब 200 मार्क्स रिटेन प्लस 40 मार्क्स पर्सनैलिटी टेस्ट. टोटल 240 मार्क्स में जो एग्जाम होगा उसमें से जो ज्यादा मिलेगा तो उनको सिलेक्ट किया जाएगा. If more than one candidates obtain same aggregate totals, the merit position, जो merit position है, तो ये merit position of the candidates determined according to their date of birth. मतलब जो डेट ऑफ बर्थ जिनका, मतलब देखिए, जो मान लीजिए एक 1991 में ईयर में उनका बर्थ हुआ है और एक का 1992 में, तो सेम मार्क्स होगा तो वो मेरिट लिस्ट में 1991 फर्स्ट आएगा और सेकंड 1992 आएगा. Result of examination, the names of the candidate called personality test and recommended for appointment will be published provisionally at WBMSC website www.mscwb.org, subject to determination of eligibility of the candidates in all respect and verification of original certificate. ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको वेरिफिकेशन करना है. ये देखिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको दिखाना है, तभी आपको एलिजिबिलिटी कहा जाएगा. At any stage of such verification or letter of any candidate is found ineligible, his candidate or candidature, allotment, recommendation, appointment will be cancelled even after the declaration of result. आप किसी स्टेज में आपका ये वेरिफिकेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर गलत होगा तो आपको सिलेक्ट होने के बाद भी आपको अपॉइंटमेंट और रिकमेंडेशन कैंसिल किया जाएगा. सिलेबस जो AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का जो सिलेबस है उसमें से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा. जो डिप्लोमा लेवल बेस्ड है तो उसी में से ही आपको मिलेगा. लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन for online application and process of submission application must be completed 22/09/2025. 22 सितंबर के अंदर ही आपको ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन में कंप्लीट करना है. Miscellaneous, a candidate now in service in under central or state government or semi-government, local or statutory body shall have to ensure that no objection certificate from his or her present employer reaches of the office of the
West Bengal Municipal Service Commission within 7 days preceding the date of personality test. पर्सनालिटी टेस्ट जब होगा तो उसका 7 दिन का पहले ही आपको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना होगा. अदरवाइज he or she will not be considered eligible for the personal test. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इन सर्विस कैंडिडेट्स है एनी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में आप काम करते हैं तो if at any state a candidate is found ineligible for admission in terms of condition eligibility for this examination, his her candidate will cancel without further reference to him or her. तो ये देखिए आपको हमने सब बता दिया. और ये जो है ब्लाइंडनेस और लो विजन का जो कैंडिडेट होगा उसके लिए ये कुछ रूल्स बताया है. आप ये थोड़ा देख लीजिए. नेक्स्ट जो है ये देखिए रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज एज सोन एज रिपोर्टेड बाय द रिक्वायर्ड बॉडी. वाइड रेफरेंस नंबर इसमें दिया हुआ है. इंस्ट्रक्शन टू द एप्लीकेंट्स, कैंडिडेट्स मस्ट रीड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन. आप अच्छे तरह से ये सब पढ़ लीजिएगा और आप एप्लीकेशन कीजिए. तो ये आप धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करना है, क्या क्या देना है, सब लिखा है इसमें. आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा. और ये देखिए कि where experience of number of years in prescribes as an item of qualification, this would mean only experience and research experience. ठीक है. तो ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि जो एक्सपीरियंस है तो experience only experience and research experience gained in full time employment. Order letter in respect of equivalent educational qualification claimed indicating the authority under which it has been so treated in respective equivalent clause in prescribed qualification if candidate is claiming a particular qualification as equivalent qualification as per requirement of the advertisement. तो ये सब आप देख लीजिए और आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन में ही करना है. तो ये आप एडवर्टाइज जो निकला है तो ये जल्दी जल्दी आप फिलअप कर लीजिए ऑनलाइन में. और जितना जल्दी आप फिलअप करेंगे ऑनलाइन में तो आप ये एक काम कंप्लीट कर पाएंगे. और जितना जल्दी होगा आपका जो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन उतना जल्दी आप स्टार्ट कर पाएंगे. आप मान लीजिए कि लास्ट डेट तक इंतजार करेंगे तो आपका प्रिपरेशन आप ठीक से नहीं ले पाएंगे. मतलब जल्दी आप एप्लीकेशन कर दीजिएगा
तो आपको प्रिपरेशन में आपको आसानी होगा, मतलब आप प्रिपरेशन को ठीक तरह से ले पाएंगे। आप लास्ट डेट तक इंतजार मत कीजिए। ये हमारा जो आपको सजेशन देना है कि आप लास्ट डेट तक इंतजार मत करिए, ये जल्दी जल्दी आप फिलअप कीजिए और आप ऑनलाइन में सबमिट कर लीजिए। तब आप प्रिपरेशन में आपको ध्यान देना है। अभी टाइम बहुत कम है, आपको जल्दी जल्दी प्रिपरेशन लेना है, तभी आपको मतलब सिलेक्शन में आसानी होगा। तो यही बात है, आज इतना ही आपको बताना था। तो नेक्स्ट आपको हम यही बताएंगे कि प्रिपरेशन का हमारा एक कैसे सब असिस्टेंट इंजीनियर का हाउ टू क्रैक सब असिस्टेंट इंजीनियर एक वीडियो बना हुआ है, आप देख लीजिएगा कि कैसे कैसे प्रिपरेशन लेना है, हमने उनमें बता दिया है। तो वो ध्यान से देखिए कैसे करना है, तो वो आप देखिएगा तो एक गाइडेंस हो जाएगा आपको कि कैसे करना है। और आप वैसे ही आप प्रिपरेशन लीजिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगा और हम यही आशा रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।